हेलो। 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 हेलो स्टूडेंट्स। हेलो। 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 यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बोर्ड व्यू है। यस मैम। ओके। सो टुडे again I am starting the fresh one, types of resources. Chapter is the same, continued, our environment, type of resources. तो पहले हमने क्या बताया था इन फ्लो चार्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, on the basis of origination, it was of two type, isn't it? That was natural and man made. ठीक है? तो natural क्या था? That was directly obtained from the nature. Is that clear? Directly obtained from the nature. And man made, what you transform. आवाज आ रही है मेरी स्टूडेंट्स? यस मैम। Okay. So man-made is what? That you transform according to your need and necessity. If you require, you may note it down. The resources we obtain directly from nature, that was natural, and what you transform according to your need and necessity. पर्पस क्या होगा? फॉर द बेनिफिट ऑफ योर ओन्स और फॉर द कमर्शियल पर्पस, तो उसको हम कहेंगे मैन मेड. ठीक है? नाउ द सेकेंड पार्ट इन आवर इन्वायरमेंट वॉज टाइप ऑफ रिसोर्सेस. ठीक है? तो रिसोर्सेस दैट इज ऑब्टेन्ड नेचुरल, या उसको कहोगे अर्थ रिसोर्स, दोनों टर्म एक ही हैं. Natural or earth resource directly obtained from either atmosphere, lithosphere or hydrosphere. ठीक है? तो उन तीनों रिसोर्स को टेकन फ्रॉम 3 डिफरेंट प्लेसेस कैसे हम कैटेगराइज करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर ओन. तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज सेकंड पार्ट में नोट डाउन कर लोगे पॉइंट्स. फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर. ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर क्या होगा? फर्स्ट इनऑर्गेनिक. ठीक है? सेकेंड ऑर्गेनिक.
and third one that is mixed. हाँ बोलो. Ask me any question. Is the board visible to you, beta? So first Yes, ma'am. is Yes, ma'am. inorganic, organic and mixed. Inorganic का एग्जाम्पल क्या होगा? Like air, water and some metallic minerals. ठीक है? Organic, that is animals, plants. ठीक है? Even fossils, fuels, microorganism and their products. If you require, then only you will write down. Otherwise, listen carefully. ठीक है? Mixed क्या होगा? Soil. Everything is present there, whether in inorganic form or organic form. समझ में आया? तो ये पहला जो कैटेगराइजेशन होगा रिसोर्सेज का ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर. और ये शायद पता होना चाहिए तुम लोगों को, जब भी क्लासिफिकेशन होता है, कैटेगराइजेशन होता है ऑन द बेसिस. मैम हाँ बोलो. ऑन द बेसिस ऑफ. इनऑर्गेनिक. हाँ बोलो. व्हाट ऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक क्या था? इनऑर्गेनिक. अब इट्स वेरी सरप्राइजिंग that you also study chemistry and you don't know, and you are in 10th, and you don't know the difference between organic and inorganic. Inorganic is what? Tell me. You tell me first the difference, because otherwise the class and section name is already with me who is asking this question. I will cut the marks on this basis. Tell me the difference between organic and inorganic. जब हमने एग्जाम्पल बताया इनऑर्गेनिक का, लाइक सॉइल, वाटर एंड अदर्स एबायोटिक फैक्टर्स, जितने भी फिनोमेना हैं, और ऑर्गेनिक दैट इज प्लांट्स, एनिमल्स, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉसिल्स, फ्यूल्स, उनके जो रिमेन्स इम्प्रिंट्स हैं, वो क्या होगा? टेल मी यस और नो. व्हाट डू यू मीन टू से? Who is asking? All organic compound contain carbon, and all inorganic compound may or may not contain compound. Then I think in the very first day when I was discussing relating to the organic and inorganic nature of the resources, I must have told. Yes, ma'am. तो इतना silly क्वेश्चन बेटा पूछोगे, दैट इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक चीज है ये. 9th में ही तुम लोग. Yes, ma'am. But this chapter is in chapter 4, so our teacher is not complete chapter 4, so everyone is don't know about inorganic and organic. अब समझ में आया या नहीं? Yes, ma'am. Carbon in compound form or in its original form may be having or hydrogen or not accomplished with hydrogen. यही है, होता है ना? Yes or no? Yes, ma'am. तो ये पहला क्लासिफिकेशन बेटा, इज इट क्लियर कि रिसोर्सेस Yes, को हमने कैसे बांटा? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर. तो ये सारे Chemical. हाँ. और जब भी ये कैटेगराइजेशन हुआ तो ये बेसिस क्या लिया गया था? सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटी. जितने एक तरह के सिमिलर मटेरियल्स थे उनको इनऑर्गेनिक में बांटा गया, केमिकल नेचर पे, और ऑर्गेनिक नेचर में, और मिक्स्ड में, दैट इज सॉइल. एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, सॉइल इज द बेस फॉर स्टैंडिंग फॉर picking up the things what is present in the soil. तो ये मिक्स्ड था. ये 3 कैटेगराइजेशन थे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर. दूसरा क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ abundance and availability. लिख लो. ऑन द बेसिस ऑफ
abundance and availability, ठीक है। abundance मीन्स बाहुल्यता, जिसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी सेक्शन भी हो पता होगा। तो रिसोर्सेज जब बाहुल्यता के स्तर पे और उनकी उपयोगिता के स्तर पे उनको कैसे कैटेगराइज किया गया, ठीक है। तो पहला था इनएग्जॉस्टेबल, मतलब जो एग्जॉस्ट नहीं हो पाए, ठीक है। और वैसा इनएग्जॉस्टेबल क्या आ सकता है, दैट इज एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं। हाँ, वाटर, एयर, कैसे तुम यूटिलाइज, डिपेंड्स अपॉन सनलाइट, हाँ, ये कैसे तुम यूटिलाइज करते हैं। दूसरा क्या होगा, एग्जॉस्टेबल में दो फॉसिल फ्यूल, कैटेगराइजेशन फूड, था। पेट्रोलियम, कोल, पहला था रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। ये सब तो बहुत कॉमन चीजें हैं, ठीक है। तो रिन्यूएबल में ओनली यू विल राइट कैन बी साइकल्ड, फिर से उसको हम साइकिल कर सकते हैं, फिर से उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं बाय प्रोसेसिंग, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल विच कैन नॉट बी साइकल्ड, सॉइल को रखा गया, ठीक है। और ये पता है कि रिन्यूएबल है, लेकिन इट टेक्स लॉन्ग टाइम, इवन योर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन कैन नॉट बी प्रेजेंट टू सी इट्स फॉर्मेशन, ठीक है। इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल में रखा गया। इज दैट क्लियर? तो ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या था, एबंडेंस एंड अवेलेबिलिटी। अब है तीसरा वन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, on the basis of distribution, on the basis of distribution में देखा गया कि ये किस किस प्रदेश प्रांत में ये अवेलेबल हैं और उनको हम कैसे यूटिलाइज करें। तो पहला क्या था, नेशनल, दूसरा था मल्टीनेशनल, ये सबको पता होगा, और तीसरा है इंटरनेशनल, ठीक है। नेशनल में लिख लोगे कि पहले सुन लो, वैसा रिसोर्स जो कि नेशनल बाउंड्रीज के सराउंडिंग और इन वो कन्फाइंड हो, ठीक है। तो वैसा रिसोर्स दैट इज कन्फाइंड टू द नेशनल बाउंड्रीज, जैसे मेटेलिक मिनरल्स हो गया, ठीक है। और माइग्रेटरी बर्ड्स भी आ सकती हैं। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, तो ये नेशनल मतलब यू विल राइट डाउन द रिसोर्सेज। हाँ बोलो मैम, ये जो लास्ट में मैम लिखे समझा दीजिए ना फिर से। हाँ, ये वाला ऑन द बेसिस Yes, ऑफ ma'am. डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कैसे कैसे, चूंकि ये जो रिसोर्स है ये तो पूरे यूनिवर्स में है, तो हम लोग कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और किस वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, इसी का ना क्लासिफिकेशन है। अर्लियर हमने कहा कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये सारे जगहों पे तो रिसोर्स प्रेजेंट हैं, तो इनको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे फॉर आवर ओन यूज़। तो ये बेसिस पहला हमने देखा केमिकल नेचर पे, और अवेलेबिलिटी और यूटिलिटी, अबंडेंस, ठीक है। फिर तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कैसे कैसे हम लोग बाइफरकेट कर रहे हैं। तो नेशनल के अंदर क्या आएगा, द रिसोर्सेज विच इज कन्फाइंड टू द नेशनल बाउंड्रीज, ठीक है। वैसा मेटेलिक रिसोर्स
या अदर रिसोर्स जो नेशनल बाउंड्रीज पर और अंदर ही कन्फाइंड है. मल्टीनेशनल, the resources which can be shared by number of nations, more than one nation. इसके बारे में तो बहुत अच्छे से पता होगा. जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं, ठीक है, तो वो क्या शेयर करते हैं? दे शेयर ओनली टेक्नोलॉजी. ठीक है, हाउ टू डेवलप, हाउ टू नरिश द कंपनीज फॉर बेटरमेंट. ठीक है, इज इट ऑल क्लियर? तो ये मल्टीनेशनल रिसोर्सेज, यू विल राइट हियर द रिसोर्स which can be shared by more than one nation. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मल्टीनेशनल कंपनी भी लिख सकते हो कि ब्रैकेट में लिख लेना कि दे शेयर, दे कम टू आवर्स कंट्री to establish any country, to nourish any country, to flourish any country for the economic purpose, for the commercial purpose. So, for that matter, they share technology, technical know-how they share. ठीक है, तो ये जो शेयरिंग है, ये क्या करता है? It involves more than one country, more than one nation. Is that clear? Tell me yes or no. Yes, ma'am. यस मैम. अब है जैसे मल्टीनेशनल में माइग्रेटरी बर्ड्स भी देख सकते हो कि एक नेशन से दूसरे नेशन में दे माइग्रेट. ठीक है, और यू कैन इमेजिन कि हाउ लॉन्ग दे ट्रैवल. वाई? बिकॉज they expect कि where they are going they will be getting better weather condition, better food habits, better to survive for long or for some time till they are living there. तो ये सारा जो facts है that comes under this fact. ठीक है, थर्ड वन है इंटरनेशनल, मतलब shared by all. जैसे एयर, वाटर, वाटर भी शेयर होता है नेशनल में. ठीक है, रिवर्स, लेक शेयर होता है ना. ज्योग्राफी पढ़ते हो, पता है ना, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तुमने, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, कि वो वाटर और रिवर का भी शेयरिंग होता है दो नेशंस में, होता है ना, इधर फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी और फॉर इरिगेशन और फॉर एनी अदर पर्पसेस. ठीक है, और इंटरनेशनल क्या है? वैसा रिसोर्स, वैसा नेचुरल रिसोर्स दैट कैन बी शेयर्ड बाय ऑल. जितने भी इस यूनिवर्स में नेशन हैं, कंट्री हैं, दे कैन अवेल फॉर देयर ओन पर्पस और ओन बेनिफिट. लाइक व्हाट? सनलाइट, एयर. सनलाइट का ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि सन सिर्फ हमारे कंट्री में ही उगेंगे, सनराइज होगा, ऐसा कुछ है नहीं ना. तो इट कैन बी वेयर इट इज राइजिंग अप, इट कैन बी यूटिलाइज एज द सोलर एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी एवरीवेयर. एयर, नो बाइंडिंग देयर. ये ऐसा हमारा एबायोटिक फेनोमेना है, ऐसा हमारा नेचुरल रिसोर्स है कि नो कंट्रोल ओवर देयर, नो बाइंडिंग ओवर देयर. तो दैट कैन बी यूटिलाइज, शेयर्ड बाय ऑल. Am I clear? Now tell me. Because this, Yes, ma'am. this categorization of natural resources, it's all ending here. ये बेटा बहुत जनरल टॉपिक है. You might have studied in the economic geography or the physical geography itself. Yes, ma'am, in geography. हाँ, very good. तो ये है, चूँकि ये not actually the physiology concern, ये सिर्फ environment के बारे में. इस पूरे चैप्टर में क्या है? environment को कैसे डिफाइन करोगे,
और एवरीथिंग वी आर गेटिंग हियर, जितने भी सोर्सेज हैं हमारे जीने के, सर्वाइवल के, तो और सर्वाइवल के लिए क्या होगा, सुने हो ना, 3 चीजें बहुत जरूरी, रोटी, कपड़ा और मकान, सुने हो या नहीं? फूड चाहिए, Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लोथ्स चाहिए, एंड टू लीव, तो ड्वेलिंग प्लेस चाहिए। तो ये 3 रोटी, फैक्टर कपड़ा, पे, मकान। है ना, यही 3 फैक्टर हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, याद रखोगे। ये 3 फैक्टर्स पे पूरी जिंदगी, पूरा सर्वाइवल डिपेंड करता है। यू डू द जॉब, यू स्टडी फॉर व्हाट, सारा इंटरलिंक्ड है। यू स्टडी फॉर व्हाट, फॉर गेटिंग ए बेटर जॉब, है ना। जॉब फॉर व्हाट, फॉर योर सर्वाइवल, फॉर नरिशिंग योर फैमिली एंड अदर्स व्हाट टू whom you like, है ना। एंड फॉर दैट मैटर, in job, whatever the nature will be, so you go for what, for your prosperity, for your progress, isn't it? So this fact is not only confined to one, main motive है पूरे यूनिवर्स का on this 3 factor। अब ये डिपेंड करता है कि सारे चीज तो हमारे नेचर में ही है, ठीक है। और ये फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ोगे कि डार्विन, चार्ल्स डार्विन, नाम सुना है ना तुमने। आई विल गो फॉर द इवोल्यूशन ऑल्सो, वो इंट्रोडक्टरी है, ड्यू टू कोविड बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक डिलीट हो गए हैं, बट इंट्रोडक्टरी में आई विल समथिंग गो इन डिटेल। तो ये डार्विन्स और लमार्क ने ये पूरे लाइफ स्ट्रगल किया टू नो व्हाट न्यू स्पीसीज, तो उनका कुछ बायोलॉजिकल नीड था कि हाउ द स्पीसीज एंड रिलेटिंग देयर जनरेशंस वेयर ओरिजिनेटेड। गुड मॉर्निंग मैम। लेकिन यहाँ पे, गुड मॉर्निंग, यहाँ पे क्या है कि पूरे यूनिवर्स में जो हमारा इन्वायरमेंटल सिस्टम है, हाउ इट हैज गुड मॉर्निंग मैम। established and how you utilize the resources जो ये 3 जगहों पे ही spreaded over है, like atmosphere, lithosphere and hydrosphere. Your job is to utilize for your benefit. समझ में आया? Is it all clear? I'm just ending this topic. Any question, any query, then ask me. Is that clear? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Should I rub this? नो मैम। No, so you will just, I have rubbed already after asking. If you don't have written, then take from others who might have taken. अब है जो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, वो रिसोर्स दैट वाज व्हाट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, सबको पता है फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, द एक्टिविटी कमिटेड बाय द ह्यूमन बीइंग, या वो एफॉरेस्टेशन हो या डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो लास्ट क्लास में वर्बली हमने बताया था कि पहले इसका क्या लिखोगे, यूजेस, ठीक है, दूसरा लिखोगे गिफ्ट। तो फॉरेस्ट ने हमें क्या गिफ्ट किया और क्या इसका यूजेस है। इज दैट क्लियर? टेल मी। यस मैम। तो पहले हम लोग गिफ्ट को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द गिफ्ट गिवन बाय द this great phenomena, great resource that is forest.
बहुत सारे पर्पस सॉल्व होते हैं फॉरेस्ट से, और ये फैक्ट है, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि अगर डिफॉरेस्टेशन को रोका नहीं गया, बैन नहीं हुआ, स्टिल बैनिंग इट इज़ गोइंग ऑन, सबको पता होगा, तो क्या होगा, वन डे इज़ नॉट सो फार कि हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम होगा फॉर आवर सर्वाइवल। क्यों? फॉर फूड। अब कहोगे फॉरेस्ट से फूड का क्या लेना देना है? क्यों? बिकॉज रेगुलेटिव एक्ट्स बहुत सारे हैं फॉरेस्ट के, लाइक पॉल्यूशन, ठीक है, एनकरेज एंड द गिफ्ट और रिसोर्सेज व्हाट वी आर यूजेज व्हाट वी आर गेटिंग देयर। तो ये सारे अगर डिफॉरेस्टेशन को रोका नहीं गया तो क्या होगा, बहुत सारे डिवेस्टेशंस हो सकते हैं। क्लाइमेट सबसे बड़ी चीज़। तो ये गिफ्ट में क्या आएगा, लिख लेना, फर्स्ट बायो डाइवर्सिटी, ठीक है, और दूसरा है हॉट स्पॉट्स। लिखा? हैव यू रिटन? फर्स्ट गिफ्ट इज व्हाट? बायोडाइवर्सिटी. Second is the hot spots. Would you define these two terms or should I? Biodiversity is what? Bio means life. तो इसको लिखोगे life in diverse nature. That is biodiversity. Diverse nature का मतलब क्या है? बहुत पहले, quite long years back, when there was no any systematics. Systematics कहते हैं way of classifying the organism. जब कोई कॉन्सेप्ट नहीं था सिस्टमैटिक्स का, ऑर्गेनाइजेशन का, क्लासिफिकेशन का, तो जो लाइफ फॉर्म थे, या वो प्लांट हो या एनिमल हो, they were in diverse nature, not only according to their habitat, even habits also. और इसकी नीड कब फील हुई? When the medical sciences field was being developed fastly. तो relating to the preparation of medicine, चूँकि मेडिसिन्स का मेन सोर्सेस क्या था, इधर प्लांट और एनिमल, वॉट एवर द फॉर्म विल बी, देन द नीड फेल्ट बाय आवर साइंटिस्ट टू गो फॉर सर्चिंग ऑल दीज facts. Then they realized from time to time, and for that matter number of scientists came on the scene and they started classifying the organism on their own basis. किसी ने तो classify किया on the basis of which animals which can fly or not, which can swim or not. तो पता है उसमें उन्होंने क्या रखा, which can fly or not, बैट को और इंसेक्ट को, चूंकि दोनों फ्लाई कर सकते थे, उन दोनों को एक ग्रुप में डाल दिया। तो क्या ये राइट था? नहीं। बैट इज अ फ्लाइंग मैमल और बटरफ्लाई या इंसेक्ट, दे आर इंसेक्ट, इनवर्टिब्रेट हैं, बोथ आर क्वाइट अपार्ट. इट वॉज ए wrong fact. Other which can swim, which cannot. ब्लू वेल्स और फिश को एक साथ एक कैटेगरी में रखा गया. Was it the fact? No. First was the aquatic mammal and second was the fishes, species. So both are part regarding their structural pattern. अगर तुम सर्कुलेटरी सिस्टम में देखोगे तो वेल के पास
that was 4-chambered heart circulatory system, and fishes उनका venous heart कहते हैं चूँकि they receive the impure blood, 2-chambered heart होता है. तो from the structural point ये जो way of classifying organism था, it was proved to be a wrong. तो then after some time another scientist came, likewise number of scientists keep on coming to solve this problem. Ultimately formation of 5 kingdom was made and the whole problem was solved. इससे क्या हुआ, नीड क्या फील हुआ था, मेडिसिनल वैल्यूज एंड ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना. ये दो नीड इतना ज़्यादा फील हुआ, डेडली फेल्ट. और तब जैसे कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन. जैसे तुम लोगों का एग्जाम्पल मैं देती हूँ. इफ़ द एग्ज़ाम इज़ कमेंस, मैम यू, हाँ बोलो. मैम स्कूल कब से खुलेगा? I am discussing something else and you are concerned for the school. It will open. The notice will go to you. Why you are in worry? अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको समझो ना. तो I am giving the example कि necessity is mother of invention. जैसे एग्जाम कमेंस होता है तो till then you are all relaxed. Not all, but 80% स्टूडेंट्स. जैसे अभी एक ने पूछा, आई एम टॉकिंग समथिंग एंड ही इज़ कंसर्न टू दैट. तो ये जो कंसर्न था तो उसमें क्या होता है, यू आर रिलैक्स. अभी एग्जामिनेशन बहुत दूर है, ऑल ऑफ सडन यू आर गेटिंग द सेंस कि नो विद इन वीक एग्जामिनेशन इज कमेंस्ड एंड वी हैव टू टेक द एग्जाम. तो क्या होता है, यू स्टार्टेड सर्चिंग मेरी यू बुक कहाँ रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है. तो ये तो बस फॉर शॉर्ट टर्म था. ऐसे ही फील हुआ था नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन. किस लिए कहा गया कि जब मेडिसिनल वैल्यू, जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ये सारी नीड जब डीपली फेल्ट हुई तो ये बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आया. मीन्स क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिज्म on their basis of similarities and dissimilarities. Similarities and dissimilarities what? Relating to their structural pattern. Am I clear? Tell me. Yes or no? Is it all clear to you? Next. Yes, ma'am. Next point. ma'am. पहला गिफ्ट क्या था बेटा, बायोडाइवर्सिटी. तो अभी हमने जितना बताया उसको यू रिकॉल योर माइंड एंड इफ यू विश यू विल नोट इट डाउन. सेकेंड थिंग, हॉट स्पॉट्स. हॉट स्पॉट इज व्हाट्स? द ऑर्गेनिज्म दे आर डेडली प्रेजेंट इन सम प्लेसेस, सम हैबिटेट. तो ये जो गिफ्ट था, ये क्या हुआ, ये बहुतों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. सपोज जैसे एग्जाम्पल वही हुआ कि अगर तुमने सामान को हैब्जर्ड वे में रखा है, ठीक है, तो क्या होगा, इफ़ यू हैव टू सर्च एनी पर्टिकुलर कमोडिटी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गो इन दैट रूम एंड सर्च दैट विद इन शॉर्ट स्पैन. नहीं होगा ना. इफ़ यू हैव अरेंज द थिंग, तो ये तुम्हारे माइंड में रिफ्रेश्ड है कि इस चीज़ को हमने, इस बुक को हमने कहाँ रखा. ठीक है. तो दिस वॉज द थिंग एंड फॉर ऑल एंड एवरी शॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम ये बायोडाइवर्सिटी ये बहुत बड़ा गिफ्ट था, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट टू अस. सेकेंड था हॉट स्पॉट. ठीक है. डोंट फॉरगेट टू राइट बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इन्वायरमेंट से 5 मार्क का क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. नाउ यूजेस. तो यूजेस तो हम लोग बहुत सारे जानते हैं. सबसे पहले तो पाबंदी
की गई है बट नॉट 100%, and mostly we are all getting on papers implemented somewhere else. किसको? To ban the deforestation. और ये बिल्कुल बैन होना चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस हैं. अब यहाँ पे यूजेस में लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट मिस टू राइट एंड हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पॉइंट्स. फर्स्ट है इकोनॉमिक. पॉइंट जॉर्डन कर लो, लिख लोगे. इकोनॉमिक वैल्यू. इकोनॉमिक वैल्यू में क्या लिखोगे? फूड, वुड, ड्रग, ठीक है, लाइक गम्स, रेसिन्स, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दे आर ऑल फ्रॉम द फॉरेस्ट. तो क्या है? दे आर, जबकि रेसिन्स एंड गम्स दे आर वेस्ट मटेरियल फॉर द प्लांट. एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने बताया है ना, दे आर कंसिडर्ड टू बी द वेस्ट, दे शुड बी एक्सक्रीटेड आउट, बट इट इज वेरी मच यूजेस फॉर अस. तो ये जितने भी मटेरियल्स हैं, इसको लिख लेना, ये जितने भी मटेरियल्स हैं दे आर फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स, फॉरेस्ट से हैं, और इनको हमको प्रिजर्व करना है फॉर आवर्स यूज एंड फॉर द फ्यूचर जनरेशंस यूज. ठीक है. सेकेंड पॉइंट दिख रहा है ना बोर्ड. सेकेंड इज व्हाट? प्रोटेक्टिव. प्रोटेक्टिव वैल्यू. प्रोटेक्टिव वैल्यू मीन्स व्हाट? अभी हमने बोला एंकरेज. एंकरेज, एंकरेज समझ रहे हो? कोई भी प्लांट या ट्री वो सॉइल से अटैच्ड होता है, दे गेट एंकरेज, और वो किस लेयर में? सब सॉइल. ऑलवेज रिमेंबर, रूट्स ऑलवेज हैव पेनिट्रेटेड इन सब सॉइल लेयर. तो क्या होगा? एक ये जो फॉरेस्ट है एंकरेज का भी काम किया, और दूसरा क्या है? क्लाइमेट एनकरेज हुआ, और क्लाइमेट मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी रेगुलेट करता है. ठीक है. वॉट एवर द क्लाइमेटिक कंडीशन अकॉर्डिंग टू नीड, is that clear? First is, have you noted down? नोट किया तुमने? एंकरेज. Yes, दूसरा Yes, ma'am. टू रेगुलेट द क्लाइमेट. इसको लिख लेना बेटा, डोंट मिस. ठीक है. दूसरा है क्लाइमेट, और तीसरा है एटमॉस्फेरिक. एटमॉस्फेरिक गैसेस. ठीक है. मतलब कि एटमॉस्फेरिक गैसेस जो मिक्सचर है, फॉर्म ऑफ मिक्सचर, तो इसको भी रेगुलेट करता है. हाउ? अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट नहीं हो बाय ग्रीन प्लांट्स तो क्या होगा? वो रेशियो बढ़ता जाएगा.
सेव करेंगे, कैसे रेगुलेट करेंगे उसके डिवेस्टेशन को, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी कमिटी बनी, डिपार्टमेंट है और इवन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल भी है। तो पहला हमने लिखा लोकल, लिख लेना, लोकल पीपल, ठीक है। दूसरा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट। इतने सारे फैक्टर्स हैं, they are responsible, if they are responsible and if they are involving with sincerity, तो क्या है कि there is no time lag when our forest cannot be saved। और हमारे फॉरेस्ट को सेव करने के लिए, ये रेगुलेट करने के लिए, इसके प्रोटेक्शन को इतने सारे इन्वॉल्वमेंट होते हैं, लोकल पीपल। और ये डेंजर में भी आएगा, ध्यान रखोगे, जैसे कि राइट द सोर्सेज फॉर डिवेस्टेशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और व्हाट आर द पॉइंट्स, व्हाट आर द फेनोमेना दैट इज़ द बेसिक कॉज फॉर डिफॉरेस्टेशन। तो उसमें भी ये एक पहला पॉइंट और दूसरा लिख सकते हो, फर्स्ट एंड थर्ड। तो लोकल पीपल मतलब जो लोकल पीपल हैं सराउंडिंग फॉरेस्ट एरिया और सम नियर बाई, तो उनकी ये ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ टू प्रिजर्व द फॉरेस्ट, ठीक है। एंड दे शुड लुक आफ्टर कि कोई ऐसा अदर एनिमल, एंटी एनिमल और सम पीपल लिविंग आउटसाइड द एरिया वो धीरे से आए और वुड को कट करें, तो ये क्या होगा, ये उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक सिंसियरिटी शो करना होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सबको पता है कि अगर तुम इफ़ यू गो थ्रू रोड साइड एरिया तो देखोगे कि नंबरिंग्स किए हुए हैं वाइट एंड रेड कलर से। तो ये क्या है, कुछ दूर तक तुम देखोगे बट आफ्टर दैट यू विल बी नॉट गेटिंग एनी नंबरिंग। तो क्या है, इट मीन्स समथिंग इज मिसिंग। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ, टू लुक आफ्टर दिस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। बट वी ऑल नो इट इज़ द हिडन फैक्ट दैट एवरीथिंग डन ऑन पेपर, वेरी लिटिल फ्यू इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन बैन होना चाहिए और फॉरेस्ट को सेव करने के लिए ये ऑल इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट, they are the biggest source for their own benefit, for their own commercial purposes. They are just cutting the tree, valuable tree, recklessly. तो ये recklessness को बिल्कुल stop करना चाहिए, so that our greatest surviving source as forest could be saved. Is that clear?